In today's session, I will discuss about stress cycles. So keep your diary and pen with you. You have to note down and understand this figure, this diagram, which I'll be breaking it down for you theoretically. Okay, so grab your diary and pen. Now we know that stress is a response to a difficult situation. Stresses are events or situations that cause us stress. At any given point of time, when you are confronting a difficult or stressful situation, this stress causes immediate effects in you. So, behaviorally, maybe you isolate yourself or you escape the danger, meaning fight or flight response will be there, or you get into unhelpful habits like procrastination is one, shopping is second, picking up fights is the third one, or binge watching, binge eating, or smoking, alcohol, or watching more of those contents. Okay. Physically, you experience lot of alarmic reactions in your system, meaning your brain has to constantly produce stressful hormones, which is going beyond the response state and therefore inviting illnesses, some serious illnesses in the system. And it also affects the immune system, which again disrupts the entire system and therefore inviting illnesses. Cognitive effects wise, lack of concentration, memory issues, indecisiveness, and feeling so much of overburden, overload, overthinking, and it is just disturbing your thinking pattern, the way you think, the way you perceive. Lot of confusion is involved, and psychologically, meaning emotionally, anxiety, depression, frustration, annoyance, and other difficult emotions. So this all comes in immediate effects of stress. Now if the stressors are maintained, जो event situation जिसकी वजह से हमें stress होता है, and so if the stressors are maintained plus you are not able to adjust or adapt or effectively respond to stress, then it will create long term negative effects. So long term negative physical, cognitive, behavioral and emotional effects, and this creates a cycle of stress which is called a cycle of distress. So first we will discuss this first cycle, a cycle of distress. Now please note the points to help understand it in a better way. So cycle of distress में सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई ये करना होता है कि स्ट्रेसर्स क्या है, मतलब कि स्ट्रेस आ कहाँ से रहे और किस चीज़ की वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल, anything which is constantly changing and it's going, it was quite unpredictable from your side or it is quite all of a sudden. So unpredictable, unexpected, unwelcomed events. अचानक से जैसे कि कोई आपसे कांटेक्ट बंद कर दे, अचानक से यू हैव सीन अ फेलियर और रिजेक्शन, अचानक से आप बहुत ही एक एक सबसे अचानक से आपको जैसे दूर किया जाता हो और अचानक से एक साथ आपको सब कुछ फेस करना पड़ता हो, तो ये बहुत ही रैपिड, अनइनवाइटेड, अनवेलकम्ड, अनएक्सपेक्टेड चेंज है और सडनली आपको फेस करना पड़ रहा है. फिर मे बी कोई तरह का हेल्थ इश्यू है, कोई डिसीज़ इन्वॉल्व है, या फिर इमोशनल या एनवायरमेंटल स्ट्रेसर है, या वर्क प्लेस रिलेटेड स्ट्रेसर है, कोई इनडेसिसिवनेस है. ये बहुत ही एक सेकेंड खतरनाक स्टेज है कि हम कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाते और हम जैसे एकदम रुक से गए हो, बहुत स्टक है, एंड ये भी बहुत ही नर्वसनेस एंड एंग्जाइटी क्रिएट कर देता है मैनी टाइम्स. किसी तरह का पेन इन्वॉल्व है, फिजिकल पेन हो, इमोशनल हो, साइकोलॉजिकल पेन हो, फैमिली रिलेटेड इश्यूज हो, सोशल हो, या किसी तरह का फियर हो या फोबिक कंडीशन हो. So first you have to identify where your stress comes from.
सेकंड है कि ये स्ट्रेसर्स की वजह से हम एक ओवरलोडिंग स्टेट में आ जाते हैं, मतलब कि अभी हम या हमारा सिस्टम के पास अब वो रिसोर्सेस नहीं है जिसकी वजह से हम उसको डील कर पाते हों, और जब वो हम आउट ऑफ द रिसोर्स है तभी हम स्ट्रेस एक्चुअली एक्सपीरियंस करते हैं। अदरवाइज इतना तो हमें चाहिए होता है ताकि हम सर्वाइव कर सकें, राइट। सो दिस इज़ योर स्ट्रेस ओवरलोडिंग, जिसकी वजह से इमीडिएट इफ़ेक्ट्स आएंगे। सो फॉर एग्जांपल बिहेवियरल इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे? ओवर ईटिंग है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, या कोई अनहेल्पफुल कंटेंट देखते रहना, या फिर अदर अनहेल्पफुल हैबिट्स में पड़ जाना। अब हर जो भी बिहेवियर इंसान एडॉप्ट करता है उस बिहेवियर के अपने ही कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जैसे कि अगर ईटिंग या हेल्थ रिलेटेड है तो वेट इश्यूज रहेंगे, फिज़िकल प्रॉब्लम्स रहेगी, फिज़िकल पेन रहेंगे, ओबेसिटी भी हो सकती है, हार्ट कार्डियक प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि पूरा लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम हो रही है ना, सिडेंट्री अनहेल्पफुल लाइफस्टाइल चल रही है। सेम थिंग इज़ फॉर अल्कोहल और any other type of content जिसकी वजह से it is creating negative behavioral effects. Physically blood pressure, heart problem, muscle tension, muscle pain, ये सब चीज़ें रहेगी। Emotionally anger, frustration, annoyance, irritation, anxiety, depression, ये सब बढ़ सकता है। And like I said, फिर वो एक mental disorder का फॉर्म ले सकता है अगर ये रिस्पॉन्स प्रोलॉन्ग मतलब ओवर टाइम परसिस्टेंट है, चलता जा रहा हो तो। एंड कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ जाती है, कॉन्सेंट्रेशन एकदम लो हो जाता है, इनडेसिसिवनेस, मेमोरी इश्यूज, और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग एंड एक खालीपन स्टेट आ जाता है, जिसकी वजह से भी मतलब वी आर लूजिंग ऑन टू दोज एबिलिटीज़। और बहुत स्ट्रेस में रह के ना ब्रेन वैसे भी इतना है, पर ब्रेन का साइज़ एक्चुअली श्रिंक हो जाता है, और हमारा जो वाइट मैटर है जो होना चाहिए प्रॉपरली, और ये जो हमारा फ्रंटल पार्ट है जिसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, एंड दिस एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यही एरिया आपका लॉजिक है, रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसमें इन्वॉल्व है। तो अगर स्ट्रेस की वजह से ये सब ब्रेन के एरियाज स्पेशली दिस एरिया डिस्टर्ब हो जाता है तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, आप सही तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, एंड सो हम कुछ डेंजरस स्टेप्स भी ले लेते हैं कभी, या फिर अनहेल्पफुल स्टेप्स। ईदर वे इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर अस एंड फॉर पीपल अराउंड अस। सो दिस आर सम इमीडिएट इफ़ेक्ट्स। अब लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? अगर कोई स्मोकिंग, अल्कोहल या अनहेल्पफुल कंटेंट में है या ईटिंग में है तो अकॉर्डिंगली उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। अगर कोई मसल टेंशन है या ब्लड हाई बीपी का पेशेंट है या कार्डियक हार्ट प्रॉब्लम्स का पेशेंट है तो उनको अकॉर्डिंगली वो प्रॉब्लम्स उनकी एक डिसीज़ कंप्लीटली एक डिसीज़ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इमोशनली अगर वो कोई इमोशंस में जा रहा है तो लॉन्ग टर्म में लाइक आई सेड मेंटल डिसऑर्डर का पैटर्न ले सकता है। कॉग्निटिवली जो भी इश्यूज हो रही है, मेमोरी, कंसंट्रेशन, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, तो आगे जाके वो ऑब्सेसिव थॉट, फिर सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं है, फिर आप वो ऑब्सेशन में आ सकते हो। आपको सीवियर मेमोरी प्रॉब्लम्स रह सकती है साइकोलॉजिकली, सिर्फ ऐसी वाली प्रॉब्लम नहीं कि अच्छा मैं ये चीज़ करना भूल गई या फिर ये काम रह गया। ओवर द टाइम बिकॉज ब्रेन का साइज भी श्रिंक मतलब कम हो जाता है एंड ब्रेन एरियाज डिस्टर्ब होते हैं, तो जो एक्चुअल साइकोलॉजिकल या एक्चुअल कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स है वो हो सकते हैं, जैसे कि मेमोरी का एक एग्जांपल है। एंड स्लीप प्रॉब्लम्स या स्लीप डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं अगर वो इमीडिएट इफेक्ट्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं एंड लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं तो। और ओवरऑल कॉस्ट क्या होगा? प्रोडक्टिविटी ज़ीरो मतलब कम हो जाएगी, डिक्रीज एन्जॉयमेंट और प्लेजर इन लाइफ एंड डिक्रीज इंटीमेसी ऑल्सो। फिर आपका किसी के साथ वेदर इट इज़ योर पार्टनर, फ्रेंड्स, फैमिली, you won't be able to connect with people around you. So ये overall cost है. So this was a cycle of distress. Okay, I hope you have noted all the points. Now let us understand the opposite cycle, which is called a wellness cycle.
Now, what is the thing that by identifying the stressors and your triggers, which is subjective in the case, you have to find the ways to deal with it effectively. So जो लोग एडेप्टिव हो जाते हैं या एडेप्टिवली डील कर पाते हैं स्ट्रेसफुल इवेंट्स के साथ, उनके लिए ऑपोजिट साइकिल चलती है जिसको कहते हैं वेलनेस साइकिल. तो ये सेशन से हमें सीखना है कि कैसे हम साइकिल ऑफ डिस्ट्रेस से निकल के वेलनेस साइकिल पे आए. एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू लर्न टू बी more adaptive towards such stressors. So wellness cycle में again first you will understand where my stress is coming from. So stressors same है, work problem है, family problem है, social problem है, किसी तरह का environmental या emotional problem है, mental problem है, किसी तरह का illness या disease involved है, या कोई rejection है, failure है. What is the stress? Where the stress is coming from? अब ये stress को समझने के बाद what we will create is health promoting responses. मतलब कि lifestyle का response आप थोड़ा change करोगे. So for example यहाँ पे हम देखेंगे techniques and skills. So at a behavioral level you will choose more adaptive behavioral responses. तो इन रिस्पॉन्स टू एनी ऑफ द स्ट्रेसर, लेट्स से आपने आइडेंटिफाई किया है कि वर्क प्लेस का है या फैमिली का है या रिजेक्शन है, फेलियर है या लैक ऑफ सोशल सपोर्ट है, तो मेरी क्या टेक्निक एंड स्किल होगी, मतलब मेरा एडेप्टिव बिहेवियरल रिस्पॉन्स क्या होगा. सो सपोज़ कि आप टाइम मैनेजमेंट का कुछ कर सकते हो, आप माइंड मैनेजमेंट कर सकते हो, आप एक्सरसाइज है, योगा है, रिलैक्सेशन है, आप प्रोफेशनल हेल्प, काउंसलिंग, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेके सीख सकते हो, असर्टिव होना सीख सकते हो जिससे आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सको कि क्या है क्या नहीं. ये असर्टिवनेस कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेसर व्हाट एडेप्टिव रिस्पॉन्स यू विल मेक. फिर एडेप्टिव फिज़िकल, तो फिज़िकल में आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए क्या करते हो, तो आपका डाइट है, आपका लाइफस्टाइल है, आपका ईटिंग साइकिल, आपका स्लीप साइकिल एंड व्हाट ऑल अदर एक्सरसाइज या हेल्थ प्रमोटिंग चॉइसेस बेसिकली आप क्या करो जिससे आपका जो फिजियोलॉजिकल स्टेट है वो अपने अप्रोप्रिएट अराउजल लेवल में रहे और उससे हाई भी ना हो और उससे लो भी ना हो, क्योंकि दोनों ही will create a problem. And cognitive and emotionally आप क्या adaptive responses करते हैं, तो आपके जो negative emotions है उनको उसको लेके आप कैसे solve कर सकते हो. लाइक ऐसे ना यहाँ पे professional help कर सकता है, बट पर्सनल वर्क भी you come in terms with your own feelings. आप खुद अपनी feelings को समझो, क्योंकि कोई भी फीलिंग्स राइट रॉन्ग नहीं होती ना, इसमें सब में हम इधर और नहीं ले सकते. इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट. आप जो फील कर रहे हो वो आप फील कर रहे हो, ठीक है. उसके लिए आपको ख़राब फील करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है या मुझे ऐसा फील नहीं होना चाहिए. इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, बाहर भले जो भी कुछ बोलते हो बट आपकी फीलिंग्स है, मीन्स दैट इज़ कमिंग फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस. However, you first need to come in terms, in alignment, in acceptance, very gracefully, very compassionately with your own feelings. तो वो एंगर का ट्रिगर समझो, वो डिप्रेशन या सैडनेस का ट्रिगर समझो, वो एंग्जाइटी का ट्रिगर समझो एंड अपनी फीलिंग्स, बेसिकली इसके थ्रू आप अपनी फीलिंग्स को समझो एंड फिर आप थॉट लेवल पे काम करो, लाइक कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग जो हम कहते हैं कि आप कैसे अपना परसेप्शन चेंज कर सकते हो. एंड आई वुड रियली से दैट प्रोफेशनल हेल्प वुड बी अ हेल्पफुल, बट इसके अलावा आप जो भी सेल्फ हेल्प मीन्स एंड मीडियम्स के थ्रू कर सको. सो after you have identified the stressor, you are coming into the techniques and skills which is making you more adaptive towards behavioral, physical, cognitive and emotional effects in response to stress. Now जैसे आप ये adaptive response लोगे तो उसके long term effects and consequences क्या होंगे.
सो फॉर एग्जांपल बिहेवियर के लिए अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो अपने काम के लिए, अपने प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट के लिए, या फिर आप कम्युनिकेशन में इम्प्रूव हो रहे हो, आप ज़्यादा असर्टिव हो रहे हो टू इम्प्रूव रिलेशनशिप, and also you are making some other choices which enhances or which increases your self respect, your self esteem. तो ये लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट होगा कि यू विल एक्सपीरियंस इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट. फिजिकली आप हेल्थ प्रमोटिंग चॉइसेस करोगे तो इलनेस के चांसेस एकदम कम हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, प्लस आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी. एंड इमोशनली एंड कॉग्निटिवली आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा, रेजिस्टेंस टू ऑल ऑफ दिस थिंग्स बढ़ेगी, एंड आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी when you go to those adaptive responses. और overall benefits क्या होंगे? Increased productivity, increased enjoyment and increased intimacy at all the levels. So I hope you have understood both the cycles, a cycle of distress and cycle of wellness properly. Now theoretically you have understood it, practically you have to implement it. Identify your stressors, look at the immediate effects, its long-term consequences and overall cost or benefit. Accordingly, you can choose which cycle you want to repeat, a cycle of distress or a wellness cycle. Choice is yours. Thank you so much.